शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड आर टुडेज टॉपिक is the Consumer Protection Act 1986 which is important for BCom LLB students। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एक्ट की, और एक्ट में जो सबसे पहले चीज़ें हैं हमें बताते हैं कि वाई वी नीड दिस एक्ट। तो कौन बताएगा ये चीज़ें? ये चीज़ें बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, tells about the necessity of this act। The Consumer Protection Bill 1986 seeks to provide for better protection of the interest of consumers and for the purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumer disputes and matter connected therewith। It seeks to promote and protect the rights of consumers such as, कौन कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? नंबर 1, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी ऐसा गुड्स नहीं मार्केट कर सकते जो क्या हो, हार्मफुल हो फॉर द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु यूज द प्रोडक्ट। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। सपोज मार्केटिंग ऑफ वेपन्स आप नहीं कर सकते क्योंकि वेपन्स आर हजार्डियस फॉर द लाइफ ऑफ द ह्यूमन लाइफ्स एज वेल एज द प्रॉपर्टी लाइक बॉम्ब्स। आप इस तरह से नहीं कर सकते। सेकंड इज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड price of goods to protect the consumer against unfair trade practices। तो ये एक्ट आपको this act protect you from the unfair trade practices from the marketer or producer। तो you have the right to know कि what is the quality, what is the quantity, what is the price, what is the level of purity or in the product। तो you have the right। तो this right is provided by the Consumer Protection Act 1986। The right to be assured wherever possible access to an authority of goods at competitive authority to purchase a good at competitive price। And what is the meaning of competitive price? Competitive price current market price prevailing in the market। जो market में current price चल रहा है that price is called competitive price। Next is the right to be heard and to be assured that consumer interest will receive due consideration at appropriate forums। कहने का मतलब क्या है? तो you have the right to file a complaint on various levels enacted by or constituted by this act like district level, state level or national level। Next is the right to seek redressal against unfair trade practices or unscrupulous एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर। तो कहने का मतलब क्या है? सपोज यू फेस अनट्रेड प्रैक्टिसेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड्स और सप्लायर साइड और मैन्युफैक्चरर साइड्स और अ मार्केटर साइड, तो यू हैव द राइट टू फाइल कंप्लेन, राइट। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस statement। And next is right to consumer education। most of the time you seen advertisement on television, जागो ग्राहक जागो। तो this act is also provide the right of consumer education। तो अब सबसे पहले बात करते हैं when the bill has been passed, the consumer protection will have been passed by both the houses of parliament, received the assent of president on 24th of December 1986। तो कभी एक्ट बना? 24th of December 1986। and section 1 subsection 1 is what is written in section 1 and subsection 1। section 1 and subsection 1 says, and this act is called Consumer Protection Act 1986। और इस एक्ट को क्या कहा जाएगा? 1980 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बात करें एप्लीकेबिलिटी की, कहाँ कहाँ पे एक्ट अप्लाई होता है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ JNK। तो जो ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK, तो जब इट इज़
the provision is same when this act is enacted, but after the passing of the bill, reorganization of Jammu and Kashmir, this act is also equally applicable on the J&K. Now this act is equally applicable in India as well as the J&K. तो सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 अब क्या कहेगा, इट एक्सटेंड टू द वोल ऑफ इंडिया. तो जो लाइन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K, इट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द एक्ट. सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, it shall come into force on such date as the central government may by notification appoint and different date may be appoint for different state and for the different provisions of this act. तो क्या सिंपल आ गया कि डिफरेंट स्टेट के लिए और डिफरेंट प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए डेट्स क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं. जैसे द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 1, 2 and 4 एक्ट कम इनटू फोर्स on 15th April 1987 and chapter 1 first, 2nd and 4 deals with preliminary consumer protection councils and miscellaneous respectively, and the provision of chapter 3 came into force on 1st August 1987 and chapter 3 deals with consumer dispute redressal agencies. तो अब एजेंसीज को बनने में तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या किया, डेट्स अलग से नोटिफाई की कि उसको बाद में अप्लाई किया जाएगा. तो उसके प्रोविजंस कब से लागू अप्लाई हुए, 1st of August 1987. Now we are discussing about the Consumer Protection Act 1986. So who is the consumer under this act? So the word consumer is defined under section 2 subsection 1 and clause D के अंदर हमें बताया गया who is the consumer. तो क्या what is written in the section, तो let's discuss the section. Section 2 subsection 1 clause D subclause 1 buys any goods for a consideration which has been paid or promised. आपने पे कर दिया या फिर आपने उसको पे करने का प्रोमिस किया, और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड, आपने हाफ पार्टली पेड कर दिया है अभी और आप पार्टली पे करने का आपने प्रोमिस किया, यू विल पे द अमाउंट इन फ्यूचर और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन. तो अब यहाँ पे क्या, आपने जो सपोज यू आर द परचेजर ऑफ द गुड्स बट इट इंक्लूड्स, तो डिफर्ड पेमेंट के लिए and include any user of such good other than the person who buys the goods. तो कोई भी वैसा पर्सन यूज़र है जो कौन है, अदर देन दी परचेजर, जिसने गुड्स को परचेज किया है. Such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or any under system of deferred payment when such use is made with the approval of such person. तो अगर आपने वो उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उस गुड्स को परचेज किया विद द अप्रूवल ऑफ द परचेजर और बायर, तो आप क्या हो, यू आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट. विच बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस. तो यहाँ पे किसी भी ऐसे पर्सन को कंज्यूमर इंक्लूड नहीं माना जाएगा जिसने क्या गुड्स को परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस. मीनिंग ऑफ कमर्शियल पर्पस मीन मेकिंग एंगेज इन कमर्शियल or profit making activity. A person engaged in profit making activity is called commercial purpose. Now take a look on section 2 subsection 1 clause D subclause 2. what is written in, तो क्या सिर्फ गुड्स ही यहाँ पे कवर होंगे इसके केस के अंदर? नहीं जी, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी सब क्लोज 2 सेज हायर और अवेल, या तो आपने क्या किया, किराए पे लिया या फिर उनको यूज़ किया, ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन, सेम प्रोसेस है, विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड और any system of deferred payment and include any beneficiary of such service other than the person who hire or avail of service for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment when such service are availed of the approval of the first mentioned person
but does not include a person who avails of such service for commercial purpose. तो यहाँ पे क्या है, in the Consumer Protection Act, whether you purchase a goods or avail a service, you will be considered as a consumer. तो दोनों को ही यहाँ पे आपको कंसिडर किया गया है एज अ कंज्यूमर होने के लिए। या तो आपने गुड्स परचेज किया या फिर आपने सर्विस अवेल की है, दोनों ही केस में आप क्या होते हो, कंज्यूमर होते हो अंडर दिस एक्ट. Act also give the explanation. What is the explanation? For the purpose of this clause, A जो explanation A है वो says that the expression commercial purpose does not include use of a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihoods by means of self-employment. And second is the expression buys any goods or hires or avails any service include offline or online transaction through electronic means or by teleshopping or direct selling और मल्टी लेवल मार्केटिंग. तो किसी भी मोड से आपने उस गुड्स को या सर्विसेज को परचेज किया हो या फिर अवेल किया हो, तो यू आर स्टिल अ कंज्यूमर. मोड कुछ भी हो आपके परचेजिंग का, तो आप उसमें भी कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट कहलाएंगे. बात करते हैं, तो अभी हमने ये क्लोजेज देखी, हमने क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड, तो इसको एनालिसिस करके हमने क्या किया, इस जो पूरी डेफिनेशन को उसको ब्रेक किया छोटे छोटे पार्ट्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ द consumer in simple words. The goods or service must have been to be a consumer under this act. First, the goods or service must have been purchased or hired or availed of for a consideration. First condition is for become a consumer in this under this act, you have to purchase a goods or avail a service for consideration. The first valid thing is there must be a consideration which has, और मोड क्या क्या है यहाँ पे उस consideration का, which have been paid in full or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment. And what is the meaning of deferred payment? It is the process of purchasing a goods on installments. Like you suppose you purchase a bike now and payment will be made on monthly installment. Next is to be a consumer under this act, goods purchase should not be meant for resale or for a commercial purpose. तो आपका जो पर्पस है कमर्शियल और रीसेल का नहीं होना चाहिए. अगर आपका पर्पस कमर्शियल है और रीसेल आप कर रहे हो, तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट. एग्जाम्पल यहाँ पे है, goods purchased by a dealer under his ordinary course of business is not considered him as consumer under this act. तो अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, सिंपल आपका बिजनेस है सेल परचेज करने का, तो उसके कंडीशन में आपको एज अ कंज्यूमर ट्रीट नहीं किया जाएगा अंडर दिस एक्ट. एंड दो केसेस यहाँ से इसी चीज़ के ऊपर बेस हैं, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट एंड भूपेंद्र जंग बहादुर गुना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर. तो ये दो केसेस हम इनको डिस्कस करेंगे, दैट विल प्रोवाइड मोर क्लियरिटी अबाउट द कंज्यूमर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर. To be a consumer under this act, in addition of purchaser of goods or hire or user of service, any beneficiary of such service using the goods and service with the approval of the purchaser. सिर्फ यहाँ पे सिर्फ गुड्स को परचेज करना ही इनफ नहीं है कंज्यूमर होने के लिए. सपोज आपने गुड्स परचेज किया पर आपने उसकी अपनी कंसेंट दी गुड्स को परचेज करने के लिए किसी और को, तो मतलब यूज़र परचेज आपने किया पर आपके प्रोडक्ट तो गुड्स का जो यूज़र है वो कोई और है, तो उस केस में भी जो अदर पर्सन है जो गुड्स को यूज़ कर रहा है, दैट विल बी ऑल्सो डीम्ड एज अ कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू परचेज अ बाइक विद ऑन योर नेम. आपने अपने नाम पे एक बाइक परचेज किया, पर उस बाइक को यूज़ कौन कर रहा है? सपोज योर ब्रदर इज यूजिंग द बाइक. दैट इन दिस केस योर ब्रदर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंज्यूमर और कवर्ड अंडर द Act of Consumer Protection Act 1986. Next is widow of the deceased policy holder was a consumer under this act. तो सेम चीज़ जो बोली गई थी, बेनिफिशियरी, तो विडो इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ LIC. अब सपोज आपने LIC ली, आपकी डेथ हो गई, तो हु इज़ द बेनिफिशियरी? योर वाइफ इज़ द बेनिफिशियरी इन दिस केस.
तो उस केस में क्या होगा कि वो भी द विडो इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ कंज्यूमर. Let's discuss our cases. Lakshmi Engineering Works versus PSG Industrial Institute. That will give you more clarity about the concept of consumer. Lakshmi Engineering versus PSG Industrial Institute. तो सुप्रीम कोर्ट में इनका जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट held that the explanation of section 2 subsection 1 clause D is clarificatory in nature. It observed that whether the purpose of which a person has bought goods is a commercial purpose is always a question of fact, and it is decided in the fact and circumstances of the each case. कहने का मतलब ये है कि जो आपका पर्पज़ है कॉमर्शियल पर्पज़ है या नहीं है, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि जिससे हम अप्लाई करने के बाद बता दें कि जो आपका पर्पज़ है वो कॉमर्शियल है या नहीं है. इट इज़ डिपेंड्स ऑन द योर fact of the cases and the circumstances of the each case. Let's take a look on the facts of the cases. In this case, the appellant is Lakshmi Engineering Works and the respondent is PSG Industrial Institute, and the case was Lakshmi Engineering purchased a machinery from PSG Industrial Institute on a loan of 22.10 lakhs. PSG supplied the machine 6 months beyond the stipulated date. जो डेट थी उससे 6 months लेट उसने डिलीवरी की मशीन की, and also supplied a defective machine, and the machine is also defective. Lakshmi Engineering lodged a complaint to Maharashtra Consumer Dispute Redressal Commission, claiming an amount of rupees 4 lakhs on several courts from the respondent. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो उसने क्या 4 lakhs का क्लेम उसके ऊपर किया, and the respondent appeared before the state commission and denied the appellant claim. तो उसने क्या वहाँ पे उसको प्रेजेंट हुआ स्टेट कमीशन में और उसने कहा, उसका डिनाई कर दिया कि जो अपीलेंट का क्लेम सही नहीं है. It raised an objection that since the appellant has purchased the machine for commercial purpose, he is not a consumer within the meaning of the said expression of defined in section 2 subsection D of the act. तो उसने कहा कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पे उसने मशीन को परचेज किया, इसलिए वो यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है. The commission allowed the appellant क्लेम पार्टली. तो यहाँ पे कमीशन ने क्या किया, उसका जो क्लेम था उसको पार्टली उसने अप्रूव कर दिया. डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू पे द अपीलेंट अ सम ऑफ रुपीज 2.48 lakhs विद इन द 30 days, फॉलोइंग विच सेड अमाउंट वॉज कैरिड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. उसने कहा कि आपका जो उसने क्या किया 2.48 का क्लेम उसका सेंक्शन कर दिया और उसको डायरेक्शन दी रिस्पोंडेंट को कि यू हैव टू पे द अमाउंट विद इन दी 30 days. अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. वो इंटरेस्ट का अमाउंट रेट उसने बताया 18% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना होगा. द रिस्पोंडेंट फाइल्ड एन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन. तो अब इसके जवाब में क्या हुआ, जो रिस्पोंडेंट था, हु इज द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट हमारा है PSG इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट जो हमारा रिस्पोंडेंट है, उसने क्या किया, नेशनल कमीशन वो चला गया. अपील उसने वहाँ पे की ऑन 7 December 1993 ऑन the only ground that appellant is not consumer as defined by the act. तो उसका जो बेसिस क्या था उसकी कंप्लेन का कि जो आपका अपीलियंट है वो कंज्यूमर नहीं है इस एक्ट के अंदर. तो अब नेशनल कमीशन में क्या हुआ, द नेशनल कमीशन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फैक्ट अपीयरिंग ऑन रिकॉर्ड it is manifest that the complaint is carrying on the business of manufacture of machine parts on a large scale for the purpose of earning profit, and significantly one single item of machinery in respect of which the complaint petition was filed by him before the state commission itself is the value of rupees 25 lakhs and odd. तो उसने कहा कि जो मशीन है वो भी क्या है, बहुत बड़ी है, उसकी जो अमाउंट है 21 lakhs के आसपास है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लार्ज स्केल पे हो रहा है. तो अब यहाँ पे जो क्या हुआ कि जो नेशनल कमीशन ने यहाँ पे वर्डिक्ट दिया, द कंप्लेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड. द नेशनल कमीशन हाउएवर ऑब्जर्व्ड दैट देयर ऑर्डर डज नॉट प्रिक्युलेट द अपीलेंट फ्रॉम परसुइंग हिज रेमेडी बाय द ऑर्डिनरी
सिविल सूट। अब हुआ क्या, नेशनल कमीशन ने जो स्टेट कमीशन का ऑर्डर था उसको साइड लाइन कर दिया, और अब जो पर इसका मतलब ये नहीं था कि जो अपीलियंट है वो अपना क्लेम नहीं ले सकता। तो उसने कहा कि आप इस एक्ट के अंदर अपना क्लेम नहीं ले सकते, आपको क्या करना होगा, ऑर्डिनरी सिविल सूट के थ्रू अपना के जो क्लेम है उसको ले सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मी इंजीनियरिंग फाइल्ड एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, जो लक्ष्मी इंजीनियरिंग थी उसने जो फर्म है वो उसने क्या सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया। उसके बाद क्या हुआ, upheld the National Commission view that the CPA provides for business-to-business disputes, but Apex Court also held that a self-employed person who buys and uses commercial goods to earn a livelihood is a consumer under the कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अगर कोई पर्सन अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपनी लाइवलीहुड्स के लिए कोई कमर्शियल यूज़ कर रहा है गुड्स का, तो ही इज़ ऑल्सो अ consumer under this act. It further said that if a person earned his livelihood by working on a typewriter or playing a taxi or driving a truck, then he could benefit from the provision of CPA. अगर आपका कुछ भी यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी क्या आ रही है, लाइवलीहुड्स आ रही है, आपकी आजीविका आ रही है, तो आप उस कंडीशन में भी आप यू आर अ कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट। Supreme Court thus held that it was not the value of goods that matter but the purpose to which the goods bought were put to। उसने कहा कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो मैटर नहीं करती, मैटर क्या करेगा, पर्पस ऑफ विच द गुड्स बॉट वर पुट टू। तो आपका जो पर्पस क्या है गुड्स को यूज़ करने का वो मैटर करेगा, ना कि वैल्यू ऑफ द गुड्स। इफ द पर्सन डिड नॉट हिमसेल्फ यूज द गुड बट अलाउड देम टू पील्ड बाई अदर देन ही वुड नॉट बी कंज्यूमर। तो अगर आप खुद यूज़ नहीं कर रहे हो उनको, किसी और को आपने असाइन कर रखा है यूज़ करने के लिए, तो उस केस में आप कंज्यूमर नहीं होगे। सपोज़ मशीनरी केस में, यहाँ पे अगर इस केस की बात करें तो मशीनरी को यूज़ कौन कर रहा था, लक्ष्मी इंजीनियरिंग अपने लाइवलीहुड्स के लिए उसको यूज़ करी थी। सपोज़ वो अपने लाइवलीहुड्स को यूज़ ना करके वो मशीन किसी और को दे देती यूज़ करने के लिए, उस केस में वो यहाँ पे कंज्यूमर नहीं होती। Let's take another case which give you more clarity about the concept of consumer under this act, and the case is Bhupinder Jung Bahadur Guna versus Regional Manager. The appeal arises out of the order dated 27th of November 1992 of the State Commission Bihar dismissed the complaint। तो ये complaint कब arise हुई, जब बिहार जो स्टेट कमीशन है बिहार का उसने ये कंप्लेन उसकी डिसमिस कर दी। द कंप्लेन बिफोर द स्टेट कमीशन हैज़ बॉट वन आइसर सोना, एक ट्रैक्टर के बारे में। तो उसने क्या, जो कंप्लेंट अपीलियंट था उसने एक ट्रैक्टर परचेज किया था जिसका नाम था आइसर सोना। ट्रैक्टर वॉज विद अ टेलर, तो उसके साथ ट्रॉली के साथ उसको परचेज किया ऑन 23 अप्रैल 1986 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1,04,510 विद अ वारंटी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year with complaint alleged negligence of supplying a tractor with a defective and substandard quality। तो उसने जो कंप्लेन में लिखा उसने कहा कि उसको जो ट्रैक्टर सप्लाई किया है कंपनी ने वो क्या है, दैट इज़ डिफेक्टिव एंड द क्वालिटी इज़ अ सब स्टैंडर्ड, और अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दस कॉजिंग हैवी मॉनेटरी लॉस, तो उसकी वजह से उसे क्या हुआ, हैवी मॉनेटरी लॉस हुआ है, अननेसेसरी मेंटल टेंशन, लॉस ऑफ वर्क एंड अदर अलाइड एक्सपेंडिचर टू कंप्लेन फॉर विच कंपनसेशन ऑफ ₹2 लाख वॉज क्लेम्ड। तो उसके लिए उसने क्या किया है, 2 लाख का कॉम्पनसेशन उसने मांगा उस केस में। तो यहाँ पे जो अब उसने तो कंप्लेन कर दी, तो अब जो पार्टी है, पार्टी को ना रीजनल मैनेजर जो कंपनी का मैनेजर है ट्रैक्टर कंपनी का, उसकी ने यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन रेज किया। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्शन, 2 preliminary objection were raised by the opposite party, namely that the complainant purchased the tractor for commercial purpose and is thus not a consumer and the provision of chapter 3 of Consumer Protection Act। and second objection क्या था उसका, the Consumer Protection Act 1986 1st of August 1987 and the warranty period was
1 year from the date of purchase, which period has expired on 26th April 1986, and thus the complaint is not eligible to seek the protection of amending act, is prospective and not retrospective. तो सिंपल पहला उसका जो ऑब्जेक्शन था कि जो ट्रैक्टर का यूज़ उसने एज अ कमर्शियल पर्पस के लिए उसने यूज़ किया है, तो वो क्या करता था कि जब ट्रैक्टर खाली होता था उसको लेट आउट कर देता था फॉर कल्टिवेटिंग दी अदर फार्म्स। तो औरों के खेतों को कल्टीवेट करने के लिए वो उसको यूज़ करता था। तो उसने कहा कि उसने इस ट्रैक्टर का कमर्शियल पर्पस यूज़ किया है, तो इसलिए दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट। उसने कहा कि जो ये एक्ट है ये तो आपका बाद में आया है, तो वारंटी पीरियड पहले ही ख़त्म हो गई, तो आई एम नॉट लाइबल टू रिप्लेस द गुड्स। द स्टेट कमीशन, फिर आगे क्या होता है, स्टेट कमीशन upheld both the preliminary objection. The state commission also went into merits of complaint and appraised and evaluated the evidence on the record as to whether there was any manufacturing defect in the tractor or whether it was a substandard quality. उसने सब कुछ चेक किया, उसके बाद जो स्टेट कमीशन ने अपना वर्डिक्ट दिया, द स्टेट कमीशन रिजेक्टेड द टेस्टिमनी ऑफ कंप्लेंट एंड हिज विटनेस एज टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड डिसमिस द कंप्लेन। तो यहाँ पे उसने जो कमीशन को ने क्या किया, रिजेक्ट कर दी उसकी कंप्लेन। एंड फिर उसने क्या किया, द नेशनल, उसने उसके बाद वो नेशनल कमीशन गया मान, एंड द नेशनल कमीशन हेल्ड दैट अ ट्रैक्टर परचेज्ड प्राइमरीली टू till the land of the purchaser and let or hired during the idle time to till the lands of other would not amount to commercial use। तो उसने कहा कि जो ट्रैक्टर का दूसरों को लैंड्स को यूज़ करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ नॉट अमाउंट टू कमर्शियल पर्पस। तो नेक्स्ट केस इज नरसिम्हा वर्सेस LIC। दिस इज़ योर होमवर्क, find the facts of this case and try to understand the concept of consumer. Now thanks for watching. Now it's time to subscribe.